Hello dear students, in this video we are going to learn about short circuit test performed on single phase transformer. I am Professor Pankaj Kumar Sharma from Department of Electrical Engineering, Sagar Institute of Science, Technology and Engineering, Ratibad campus, Bhopal. So, what is the need to perform short circuit test on single phase transformer? As I have told in my initial video, earlier video, while explaining open circuit test, here we are focusing on short circuit test. The sole purpose of having these two tests to determine the efficiency of transformer. These two tests, whether it was open circuit test in the previous video, whether it is short circuit test in this video, will give you losses. Open circuit test has given you constant losses, but this short circuit test will give you variable losses. Now let us see with the help of this diagram, this connection diagram, how this short circuit test on single phase transformer is performed. This is high voltage side, this is low voltage side, and this low voltage side of the transformer of this single phase transformer is short circuited. When it is short circuited, voltage becomes 0 of these two terminals and current becomes maximum. And the measuring devices, measuring instruments are connected on high voltage side. You can see this voltmeter of the range 0 to 300 volt MI type is connected in parallel. This ammeter of the range 0 to 10 ampere of the type MI type is connected in series, and this wattmeter, which is having two coil, this current coil is connected in series, and this pressure coil connected in parallel. Now let us understand. This short circuit test will give you the loss which is called the variable loss, the loss which is occurring in copper winding, so it is also called as copper losses. This copper losses will be given by this wattmeter, that is the total full load copper loss will be indicated by, will be given by this wattmeter, which is the reading of the wattmeter. You can understand by reading the wattmeter under these conditions. What is the conditions? I am going to highlight it once again. The low voltage side is short circuited, voltage made 0, current automatically will reach to its maximum. The high voltage side will be used to measure all the functioning happening here. This ammeter will record the current, this voltage will give you the voltage, and this wattmeter will give you the power which is being wasted up, being lost. This lost power, this is the lost power loss, which is actually copper loss, that is variable loss. If you happen to vary the load within these two terminals, this secondary wire, you will have different value of this variable losses. But under this condition, under this short circuit test, you are having full load copper loss, which is given by this wattmeter. Consider it once again that we perform open circuit test, and in this video which we are discussing about short circuit test, to finally find out the efficiency of transformer, efficiency of single phase transformer. Let us now understand how it is performed, the full procedure to perform this short circuit test. Hello dear student, I am Vinod Kapse, Electrical Engineering Department, SISTEC Ratibad, Bhopal campus. So dear student, today we are going to perform short circuit test on a single phase transformer. Okay, so for performing this test we required some equipment like single phase auto transformer, voltmeter, ammeter, वोल्टमीटर एंड एमीटर दोनों ही MI टाइप, ओके, वाटमीटर एंड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर.
ये प्रैक्टिकल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट कितना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग देख लीजिए आप पहले। इनपुट वोल्टेज 230, आउटपुट में भी 230 वोल्ट। ओके, और केवीए में देख पा रहे हैं आप 1 केवीए। ओके, तो आप करंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। जिस साइड का भी आपको करंट फाइंड आउट करना है आप केवीए डिवाइड V1 मतलब प्राइमरी साइड एंड केवीए डिवाइड V2। ओके, जैसा कि आपने सर्किट डायग्राम देखिए, सर्किट डायग्राम में आपने देखा, आप देख पा रहे हैं अभी कि सर्किट डायग्राम में जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है वो कैसे है, HV हाई वोल्टेज, एंड सेकेंडरी साइड क्या है, LV लो वोल्टेज। लो वोल्टेज साइड को हमें क्या करना है, शॉर्ट। ओके, तो इस ट्रांसफार्मर को HV और LV कैसे बनाना है, इसके लिए हमारे पास में टैपिंग्स दी हुई है। टैपिंग्स आप देख सकते हो यहाँ पर 20%, 50%, 86% एंड 100%। यदि हम 2 टर्मिनल सेलेक्ट कर ले, कोई भी 2 है ना, ये कॉमन पॉइंट हो गया। इसके बाद में 50%, इन दोनों को आपस में हम कनेक्ट करें, लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम क्या, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ओके, चलिए सर्किट कंप्लीट करते हैं डायग्राम के थ्रू। हम इस सर्किट डायग्राम में देख पा रहे हैं पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट है, MI टाइप। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये दिख रहा है सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर वेरिएक है ना, उसके बाद में पैरेलल में वोल्ट मीटर एंड सीरीज में अमीटर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अमीटर की रेंज मतलब अधिक रेंज वाला अमीटर सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पर, जो कि लिखा हुआ है 0 से 10 एम्पियर, क्योंकि आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हो जहाँ पर करंट मैक्सिमम होगा, है ना। तो देखिए पैरेलल में वोल्ट मीटर आपने कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर के कनेक्शन कंप्लीट करिए। देखिए आप ये देख पा रहे हैं 2 कनेक्शंस, पैरेलल मीन्स 2 कनेक्शंस, 2 कंडक्टर पैरेलल में, है ना। कनेक्शन कंप्लीट हो गया, देख पा रहे हैं आप पैरेलल में वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में अमीटर, अमीटर को कैसे कनेक्ट करना है सर्किट में, सीरीज़ में। आपने सर्किट देखा अभी, तो सीरीज़ में कनेक्ट हो रहा है ना। तो टर्मिनल कनेक्ट करिए, ये देखिए ये सीरीज़ टर्मिनल कॉमन से कनेक्ट किया। देन जो रेंज आपको सेलेक्ट करनी है स्टूडेंट, जो भी रेंज आपको सेलेक्ट करनी है आप रेंज सेलेक्ट करिए। आपको 10 एम्पियर सेलेक्ट करना है, ठीक है, हाई रेंज, क्योंकि करंट मैक्सिमम है। ओके, सीरीज में अमीटर के बाद में आपको वाट मीटर कनेक्ट करना है सर्किट में, ठीक है। वाट मीटर में आपको पता है, जो कनेक्शन की बात करें, देखिए वाट मीटर के कनेक्शन में ML, ये जो कॉइल है ये कौन सी कॉइल है, CC मीन्स करंट कॉइल, एंड दिस इज PC, C and V, दिस इज पोटेंशियल कॉइल। ओके, तो यहाँ पर टर्मिनल्स प्रॉपर हमारे पास में अवेलेबल है। आप देखिए ML है ना, तो ये कनेक्शन हमने किया M वाला सर्किट, M एंड L, ये दोनों कैसे हैं, CC के कनेक्शन है, M एंड L। ओके, तो CC के कनेक्शन किए और HV रखना है हमें प्राइमरी साइड, HV के एक टर्मिनल में कनेक्शन कंप्लीट कर लिया अपन ने। अब देखिए सेकेंड अमीटर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया, वाट मीटर में एक ही कनेक्शन आया है अभी, ठीक है। वाट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में, तो आपको सेकेंड टर्मिनल भी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर 3 रेंज दी हुई है, 75, 150 एंड 300। चूँकि हम रेटेड करेंट पर ये प्रैक्टिकल करते हैं तो वोल्टेज एकदम मिनिमम होता है ना, तो लो वोल्टेज रेटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं 75 वोल्ट। ओके, सेलेक्ट कर लिया। ये कनेक्शन हम वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा जो वाट मीटर है कैसे कनेक्ट हो गया, पैरेलल में। स्टूडेंट कैसे कनेक्ट हुआ है, पैरेलल में। देन आप कनेक्शन में देखिए सर्किट डायग्राम में M और C आपस में कैसे हैं, कनेक्ट हैं। तो M और C को आपने कनेक्ट कर दिया। ओके,
जो वोल्टेज वाला पॉइंट है, इस वोल्टेज के पैरेलल में, मतलब वोल्टेज वाला जो पॉइंटर है हमारा वाटमीटर तक कंप्लीट हो चुका है, बट आगे हमने कनेक्शन कंप्लीट नहीं किया है। तो आगे भी हम कनेक्शन कर लेते हैं कंप्लीट। एक सेकेंड, देखिए देख पा रहे हैं आप कनेक्शन 75 से हमने पैरेलल में लगा करके, ये क्या है, ट्रांसफार्मर की कनेक्शन, ट्रांसफार्मर। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एंड अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, सेकेंडरी साइड को शॉर्ट करना है ना, मतलब लो वोल्टेज साइड। तो आप कोई भी रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपके पास में टैपिंग्स अवेलेबल है, 100% तो नहीं करना है ना, लो साइड रखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, 50% को हम शॉर्ट सर्किट कर दे रहे हैं। ओके, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब हम एक बार फिर से हमारे कनेक्शन रीचेक कर लेते हैं। देखिए, हमने सीरीज़ में पैरेलल में हमने वोल्टमीटर पहले कनेक्ट किया है ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ में, देन सीरीज़ में हमने अमीटर कनेक्ट किया है। ओके, देन पैरेलल में हमने क्या कनेक्ट किया है, वाटमीटर। प्राइमरी HV है और सेकेंडरी लो वोल्टेज साइड को हमने क्या किया है, शॉर्ट किया है। देख पा रहे हैं, क्लियर है? ओके, चलिए कनेक्शन हमने चेक कर लिए हैं। अब हम सप्लाई स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन किया, ओके, और हम वेरिएक के थ्रू मैक्सिमम करंट देखते हैं। देखिए, आपको फोकस यहाँ पर करना है करंट। देख पा रहे हैं आप, जबकि हमारा जो वोल्टेज का पॉइंटर है मिनिमम है। स्टूडेंट, हम पढ़ नहीं पा रहे रीडिंग, पर हम मल्टीमीटर की हेल्प से एक्यूरेट वोल्टेज फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। बट करंट आप देख पा रहे हैं, इतने लो वोल्टेज पर भी करंट कितना है, मैक्सिमम। देख पा रहे हैं, 4.5 करीब। वाटमीटर भी देख पा रहे हो आप, है ना? ठीक है, कितना है ये वाटमीटर, 35। ओके, 35 वाट। इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी है, वो भी हमें अभी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रीडिंग्स देख लेते हैं। आप इस साइड देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड क्या है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो हम एक्यूरेट वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पर मल्टीमीटर का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा वोल्टमीटर हाई रेंज का है ना। तो देखिए हमने 19 वोल्ट अप्लाई किया है यहाँ पर। कितना, 19 वोल्ट। ओके, 19 वोल्ट। तो स्टूडेंट, वाटमीटर की रीडिंग्स, आप ये सारी रीडिंग्स नोट कर लीजिए। पहले रीडिंग नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिए, हमने रीडिंग नोट करी। वोल्टेज कितना है, 18 वोल्ट, करंट 4.5 एम्पियर, एंड वाट आपको मैंने बताया था 35, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है यहाँ, 2। तो वाट टोटल कितना हो गया, 70 वाट। ओके स्टूडेंट, बाकी आपके पास में जो मैनुअल में फार्मूलेस दिए, उसके थ्रू आप कैलकुलेशन करके मतलब कॉपर लॉसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।